So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is one more video for the series Jackboard Model Paper for 2022 and 23. And here I have chosen the subject Science, which is totally in Hindi. I'm just translating it into English. Now see, this is a question paper. It is in Hindi. It is an original question paper. It is written Jharkhand Shaikshanik Anusandhan एवं Parikshan Parishad Ranchi Jharkhand. Now you see uh, subject is science. Again, time is 1 hour 30 minutes. There are 40 MCQ questions. All questions are compulsory and each question carries 1 mark. Now you see the questions are in Hindi. I'm just translating it into English. Now see the English version of that. Now here you see which mirror is used for shaving. So 4 options are there. You have to choose the correct answer, either plane, convex or concave or none. I think for shaving mirror, concave is the right answer. Now the question number 2, the relation between F and R. F means focal length, R means radius of curvature for any spherical mirror is. So obviously F will be half of radius. Now question number 3. Which physical quantity remains unchanged in the process of refraction of light? So here velocity changes when it comes from one medium to another medium, wavelength also changes, but frequency will not change, it will remain unchanged. Now, question number 4. The power of convex lens of a focal length 1 meter will be. So here I think it is 1 meter means 1d, but if it is concave minus, if it is convex means plus d. So D is the correct answer. Now question number 5. What is the focal length of the concave lens of power 4d? So you have to solve this. After solving you will get the answer 25 centimeter. Which mirror is used in front of lamps of a vehicle? So which mirror is used? जो हेडलाइट्स वगैरह होते हैं उसमें कौन से मिरर यूज होते हैं? Concave mirror. The part of human eye on which image of an object is formed. Actually इमेज हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, बट यहाँ रेटिना बोल के कोई नहीं दिया. विजन बोर्ड को भी हम रेटिना कहते हैं. तो विजन बोर्ड को भी हम रेटिना कहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर डी होना चाहिए. What is the far point of a normal eye? See, near point is 25 centimeter and far point is infinity. दूर दूर तक चांद तारे हमें नजर आते हैं. So infinite is the answer. Who controls the amount of light entering the eye? हमारे आँख के अंदर जो लाइट एंटर करता है उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ रेटिना इन द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में रेटिना का क्या काम है? एक तो रियल होता है और दूसरा हमको इन्वर्टेड, हमारे आँख के रेटिना के पर्दे पर उसकी छवि उल्टी उतरती है. सो रियल एंड इन्वर्टेड इज द आंसर. एक्चुअली ऑप्शन डी होगा, डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 1 किलोवाट इज द यूनिट. किसका यूनिट है 1 किलोवाट? एनर्जी. नाउ कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ किसका? कूलम किसका ये ऐसा यूनिट है? चार्ज का ऐसा यूनिट है. ना इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कंट्रोल्स. मैकेनिकल एनर्जी तो उसमें आती नहीं है जो इलेक्ट्रिकल हो, ये आपका जनरेटर का है. बट इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये बी इज द राइट आंसर. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. What type of reaction is electrolysis of water? Electrolysis of water किस प्रकार का रिएक्शन है? देखिए वाटर हम डालते हैं, उसमें
करंट ये करते हैं इलेक्ट्रोड से साथ कैथोड एनोड पे। वाटर जो होता है इज ए कंपाउंड, इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो अलग अलग हो जाते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 15, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम एक करने से हमें कॉपर और वाटर अलग अलग हो जाता है। बट इन दिस इक्वेशन विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो देखो ये तो रिडक्शन हो गया, ओ निकल गया, बट किसमें ऑक्सीडाइजेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली द आंसर इज हाइड्रोजन, H2D is the correct answer. Now in the given figure name the type of reaction. ये फिगर देखिए आप, अब इस पिक्चर में आपको बताना है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। देखिए मिथाइल ऑरेंज है, ये आपका आर्टिफिशियल है, फिनॉलपेथिलीन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज जो है वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, फिनॉलफेथिलीन भी आर्टिफिशियल है, लिटमस तो ट्रू नेचुरल इंडिकेटर है, तो नन तो होगा नहीं। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH वैल्यू 10। अप टू 7 तो न्यूट्रल है, 7 से कम वाले जितने होते हैं वो एसिड है, 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो बेस है, और ये 10 है तो हमारा बेस ही इसका आंसर होना चाहिए। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन गिव्स दिस पिक्चर, पहले ये पिक्चर देखिए, आपके बुक में भी है ये पिक्चर, पहले पिक्चर देखिए, आपके बुक में भी है पिक्चर। देखिए पिक्चर के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है वार्निंग साइन फॉर वेसल्स कंटेनिंग एसिड्स एंड बेसिस। उन वेसल के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतिए जिसमें एसिड और बेस रखा गया हो। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिन। टैमरिन मतलब इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, मालिक तो नहीं होता है, ये होता है टार्टारिक। विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए नॉन मेटल, मेटल होता तो मर्क्यूरी होता, अब नॉन मेटल है तो ब्रोमाइन होगा, तो ब्रोमाइन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने का जो काम करता है वो किस सब्सटेंस से बनता है, ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन व्हाट बेसिस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितने भी टेबल बने थे, डोबेरेनियर ने या आपका न्यूलैंड ने, ये सब एटॉमिक वेट लिए थे, लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये आपका एटॉमिक नंबर लेके बेस किया था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एटॉमिक नंबर के बेस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर उसे सजाया गया था। ना क्वेश्चन नंबर 24, ना क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम ही होता है, तो पोटेशियम इज पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद ही कैल्शियम आता है। 25, द एलिमेंट आर कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड। मिनरल, मिनरल ही जो हमारे अर्थ क्रस्ट में एकदम नेचुरल फाउंड होते हैं, तो मिनरल इसका आंसर है। विच रिएक्टिव ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में कौन सा रिएक्टिव ग्रुप होता है, प्रोपेनॉल NaL है तो अल्कोहल का ही उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें अल्कोहल हमको यही नज़र आ रहा है, तो अल्कोहल होना चाहिए। Now 27,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है? वाटर ब्रेकिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है। सो आंसर इज सी, रिलीज। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम टेक्स प्लेस इन विच डायरेक्शन। जो जाइलम का है वो आपको केवल रूट से पत्ते तक जाता है, लेकिन खाना बनने के बाद जो फ्लोएम टिश्यूज का जो काम है वो खाना को हर और बांटना, तो कभी ऊपर भी कभी नीचे भी, तो नन तो नहीं होगा, बोथ अप एंड डाउन, नीचे, क्योंकि रूट्स तक उसको देना पड़ता है। तो यही है फ्लोएम का काम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आपके हिंदी वर्जन में दिया हुआ है सेल, किडनी, न्यूरॉन, डायलिसिस। डायलिसिस तो हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, अगर हमारा किडनी खराब होता है तो सेल तो नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन, तो हो सकता है डी में नेफ्रॉन ही होना चाहिए, तो मैं इसको नेफ्रॉन लिखा हूँ, नेफ्रॉन, क्योंकि न्यूरॉन नहीं हो सकता। अगर न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन होगा तो अब सी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि इसको मैं नेफ्रॉन मैं लिखा हूँ किडनी की जगह, क्योंकि किडनी है तो किडनी ऑप्शन नहीं होगा, उसके कोई और आंसर्स होंगे, तो नेफ्रॉन एक्चुअली करेक्ट आंसर है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो पेड़ में जो फल होते हैं उसको पकाने में एक हार्मोन का ज़्यादातर यूज होता है, वो कौन सा हार्मोन है? ये आपका सी, एथिलीन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31। एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। किस ग्लैंड के द्वारा एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है? ओवरी। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड। जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन द गिवन फिगर विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ये जो पिक्चर जो है इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है? या बडिंग, या फ्रैगमेंटेशन, या रीजनरेशन, या फिजन। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, उसको बडिंग लिखा था क्योंकि ट्रांसलेट करने में, बट एक्चुअली फिर बाद में पता चला बडिंग तो नहीं होगा, बडिंग तो ऑलरेडी है यहाँ पर, इसलिए फिजन होना चाहिए। तो बडिंग ही है आपका, हाइड्रा वगैरह में जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बडिंग प्रोसेस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34। द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। विंग्स, बर्ड्स के भी विंग्स, बैट्स के भी विंग्स, भले इनके स्ट्रक्चरल अलग होते हैं, फंक्शनल एक होता है, ऐसे को कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग चूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल को एक्सपेरिमेंट करना था, वीट अगर लेता बहुत ज़्यादा समय लगता, ग्राम लेता जो भी ज़्यादा समय लगता, पी जो है वो कम समय में उसको रिजल्ट दिखा देता था, इसलिए उसने पी को चुना। एक ड्वार्फ को, एक टॉल को, एक राउंड को, एक रिंकल को, उसके साथ उसने क्रॉस करवा करके देखा कि क्या इसका ऑफस्प्रिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो फूड चेन में जो सबसे पहला जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना जिसमें बनाता है, वो इसमें ना स्नेक है, ना कार है, ना ग्रासहॉपर है, ये आपका ग्रास। ग्रास को प्रोड्यूसर कहते हैं, ग्रास को ग्रासहॉपर कहता है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इस तरह होता है फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। द हार्बीवोरस शाकाहारी फॉर्म विच लेवल इन ए फूड चेन। एक्चुअली प्रोड्यूसर के बाद जो आता है, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो हरे घास वगैरह को खाते हैं, उसी को कहते हैं हार्बीवोरस। तो यहाँ पर आया फर्स्ट प्राइमरी। फर्स्ट प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो आपको हार्बीवोरस के फर्स्ट लेवल में आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। द वेदरिंग ऑफ ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ओजोन लेयर जो अब छितर बितर हो रहा है, किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, जिसके वजह से ओजोन लेयर में थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी का सोर्स जो है, बायोमास एनर्जी का सोर्स है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? वुड है, गोबर गैस है, कोल है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, द मिनिमम विंड स्पीड फॉर ए विंड पावर जनरेशन। जो विंड मिल लगता है, वो विंड मिल को घूमने के लिए हवा का जो स्पीड है कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर्स पर आवर होना चाहिए। तो ये आपका 40 क्वेश्चन MCQ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा, वो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, वो भी 40 मार्क्स का रहेगा। So very soon we will meet with another video. Till then, goodbye.